So, good morning to all the students. We were discussing the laws of reflection. तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट द फर्स्ट लॉ इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जैसे आपको बताया था कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. So and the what is the angle of reflection? This is the angle between, this is the reflected ray and this is the normal. So angle between these is the angle of reflection. So according to laws of reflection, these two angles will be same. Means if the light incident on the surface with angle of 20, then it will be reflected back in the same medium with the same angle, that is 20. So angle of reflection on angle of incidence both are the same. And the next we have the second law. In second law, all the three lines, means this is the incident ray, this is the reflected ray and this is the normal. These three will be in same plane. So this is the second law of reflection, that incident ray, reflected ray and the normal, these three will be in the same plane. Now next we have the image made by the plane mirror. So as we know, the image we know that there are two types of images. जैसे कल बताया था आपको मैंने कि एक तो there is virtual image, one is real image. So in virtual real image, we studied that real image can be obtained on a screen, but virtual image cannot be obtained on the screen. Example भी दी थी आपको मैंने. Real image की example क्या होती है, that we go to the cinema hall and we also have seen the projectors. तो projector क्या करते हैं, they project the image on the screen. So that image is real image, but the image we see in the mirror, plane mirror, we see we have we have the plane mirrors in our house. So this image is the virtual image, that we cannot obtain this on the screen. So here the image made by the plane mirror is virtual. Now the image can also be of another two types, means one is the erect image, ठीक है, और second is the inverted. Okay, inverted. One is the erect image and second is the inverted. So what is the difference between the erect and inverted? Now see, this is our mirror. Okay, this is our object AB. Suppose let's we take the example of the given diagram. Okay, now this is the object and this is the image. So the image is on the same side. If the image is somewhere here, then we say that the image is inverted. So erect image means that if we see here there is a object AB, the image of the object is AB. ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज. तब हम बोलेंगे कि जो इमेज बनी है ये है इरेक्ट इमेज. और अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी लेकिन इमेज बन जाए यहाँ पे बी ए, तो जो इमेज बनेगी वो हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज. तो इरेक्ट का मतलब जो सीधी बनती है, बिल्कुल सीधी, और जो उल्टी बनती है वो इन्वर्टेड होती है. तो यहाँ पे अगर आपने, जैसे आप भी देखते हो बेटा, यू सी योर सेल्फ इन द इमेज, तो आप उल्टे नहीं दिखते, आप बिल्कुल जैसे सीधे खड़े हो वैसे ही दिखती है. तो इट मीन्स जो इमेज बनती है दैट इज़ इरेक्ट. Secondly,
द जो इमेज है उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसा ही होता है। जैसे मतलब कि अपने बात करें कि जितनी हाइट हमारी वैसे है उतनी ही हाइट हमारी जो है, हमारी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो उसकी हाइट भी उतनी ही होगी। तो इस तरीके से इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ये रहा ऑब्जेक्ट, मतलब अपने अगर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फीट पे खड़े हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी कितनी दूर होगी, दैट विल बी आल्सो 5 फीट। मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। These are some points, and the last point is it is laterally inverted. What does it mean? It means that आपने कई बार देखा भी होगा बेटा कि अगर अपने ऐसे लिखते हैं ना, सपोज ABCD, ठीक है, बट इसकी इमेज जो है वो हमें उल्टी दिखेगी। उल्टी मीन्स कि ये जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल ऐसे उल्टे दिखेंगे। डी ऐसे दिखेगी, ठीक है, ए में तो कोई डिफरेंस नहीं आता ज़्यादा, बी में डिफरेंस आता है, बी जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। तो इस तरीके से जो अपने जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो बदल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट वी हैव स्फीरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फीरिकल मिरर्स? देखो बेटा, प्लेन मिरर तो हमने देखा कि बिल्कुल प्लेन ऐसे सीधा जो एक शीट की तरह सीधा बिल्कुल मिरर होता है, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। लेकिन जो हमने स्टडी करनी है वो प्लेन मिरर नहीं है, वो है स्फीरिकल मिरर्स। अब स्फीरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फीरिकल मिरर नाम से पता चल रहा है बेटा, एक स्फीयर ले लो, जैसे आपके पास एक बॉल है, गोल बॉल है कांच की, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस ग्लास की जो बॉल है, स्फीयर है ग्लास का, उसको आपने यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो आपको जो है वो दो यहाँ पे, सो वन पीस इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दी अदर पार्ट, ठीक है, ये हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको फेंक दिया, ये हमने रख लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा बच गया ये वाला, ये है हमारा स्फीरिकल मिरर, इसको हम बोलते हैं स्फीरिकल मिरर। तो अब ये है किसका पार्ट है? ये दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने उसी से तो इसको काटा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, सो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द मिरर विच इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऐसा मिरर जो कि एक स्फीयर का पार्ट था, दिस मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, ये हमने ये पार्ट को हमने रख लिया था, ठीक है, दिस इज़ अवर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऐसे बना हुआ था ना, तो इसको हमने काट लिया था और इस पार्ट को हमने रख लिया, बाकी इसको हमने फेंक दिया। तो अब इस पार्ट के भी दो मिरर बनेंगे। कौन कौन से? देखो, अगर तो मैंने ये मिरर ऐसे रख दिया, ठीक है, देखो इसको दो डायरेक्शन में रख सकते हैं, एक तो ऐसे, एक दूसरा है ऐसे, ठीक है। अब अगर तो मेरा मिरर ऐसे पड़ा है और इसका ये सरफेस जो है वो पॉलिश है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर इसका ऐसे पड़ा है, मतलब ऐसे पड़ा है, और इसका जो ये सरफेस है वो पॉलिश है, मतलब उभरा हुआ जो सरफेस है वो पॉलिश है, तब हम इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। तो ऐसे आपने याद रखना है बेटा। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाले का, ठीक है, ये अब कौन सा मिरर है? दिस इज द कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ से लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके यहाँ से बैक जाएगी, और इस मिरर में क्या होगा, यहाँ से लाइट आ गई और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? सो
in both of these mirrors there is one difference that अगर अपने इसकी बात करें, इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B। तो A में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभरा हुआ है, बाहर को उभरा हुआ है, लेकिन इसका जो B का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है। A का आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसका B का इनवर्ड है। तो इसमें अपने जो A मिरर है वो कॉन्वेक्स है, आपने याद रखना है, और ये वाला जो B मिरर है ये कॉन्वेकेव है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द स्फीरिकल मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। इसका क्या होता है? इनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स का कर्व्ड आउटवर्ड। तो इस तरीके से आपने याद रखना है बेटा। दोबारा बता रहा हूँ, ये हमारा है, अगर तो ये सरफेस इसका पॉलिश है और लाइट ऐसे आती है ऐसे जाती है, तो ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा, अगर ऐसे बना हुआ है मिरर और लाइट ऐसे आती है ऐसे जाती है, तो ये हमारा है कॉनकेव। तो इस तरीके से आपने ये दोनों मिरर को याद रखना। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास।